Awesome. Mr. Amitabh, prepare the following profit and loss account. Awesome. Mr. Amitabh prepared the following profit and loss account of his clothes shop for the year ended 31st March 2022. Find out his income from business for the assessment year 22-23. We are given a P&L account. If you look at the credit side, we have something called as gross profit, which is of course a business income. Gross profit is the profit earned by buying and selling the goods and services. Business income and कर लो पहले जो भी करना है. Second is we have gift from relatives, my dear friends. In business, if I receive the gift from my suppliers, it's a business income. I receive the gift from my customers, it's my business income. I give the gift to my customers, business expenses. सर बिजनेस से रिलेटेड है और यहाँ पर जो मुझे गिफ्ट मिला है मेरे रिलेटिव से मिला है. इज इट अ बिजनेस इनकम? इट्स माय पर्सनल इनकम और इट्स माय पर्सनल रिसिप्ट्स आई विल से. तो ये तुम्हारा बिजनेस इनकम नहीं, तो इसको ऐड करें कि लेस करें? विल बी सब्सट्रैक्टेड. नेक्स्ट, come on the debit side. We have salary and wages. We have rent, household expenses. Sir, household expenses personal. अरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, पर्सनल है, डिसअलाउड. ऐड बैक करेंगे. ऐड बैक हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस 82,000. इनकम टैक्स पर्सनल, डिसअलाउड. एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज बिजनेस का खर्चा है. गिफ्ट टू रिलेटिव्स पर्सनल एक्सपेंसेस. इसी जगह पे अगर गिफ्ट टू कस्टमर्स लिखा होता तो बिजनेस एक्सपेंस मान के ऐड बैक नहीं करते थे. I repeat again, income tax and wealth tax are personal tax. If you pay GST, it is a business expenditure. Indirect taxes paid like GST, excise duty, custom duty is a business expenditure. We have discussed in detail regarding the whole stuff. Income tax is a tax on your income. It's a personal liability. It's a concept called as business entity concept. तुम और तुम्हारा बिजनेस तो अलग चीज है अकाउंट्स में. इनकम टैक्स भी इसको मानता है. इनकम टैक्स क्लियरली सेज दैट बॉस, you are earning the income, you pay the tax. That is your personal liability. That is not your business ka liability. Therefore, it is a personal expenses. Clear? What else? We have fire insurance premium. Now, nothing is given. We assume that it is for my business premises का fire insurance premium. Life insurance premium कुछ बोला नहीं है. So we assume that it is for the proprietor. ये हम लोग डिसअलाउ करेंगे. पीपल माइट आर्ग्यू, सर हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज का पे किया हो. एम्प्लॉयज का पे किया तो अलाउड है, आपको पता है. बट कुछ नहीं बोला तो हमेशा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया. इट इज कंसीडर्ड एज ए पर्सनल एक्सपेंडिचर, assuming it is paid for the life of the proprietor or the owner of the business. Then we have something called as bad debts reserve. बच्चा लोग bad debts reserve, any kind of reserve, any kind of provision is not an expense first of all. When I say I am making a provision for taxes, when I say I am making provision for bad debts, I am simply keeping aside some portion of my profits. मैं अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन साइड में निकाल के रखता हूँ, तो ये पैसा मुझे टैक्स के लिए यूज करना है. This amount I have control to there is a provision for bad debt is 5,000. That means that much amount I will keep as a provision in case future में अगर bad debt होगा तो वो लॉस हम उस provision के अगेंस्ट क्या करेंगे, stop करेंगे, एडजस्ट करेंगे. So any kind of provision or any kind of reserve
नॉट एन एक्सपेंडिचर फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई खर्चा ही नहीं तो वहां पे अलाउ कैसे करेंगे? तो moral of the story in short is that any kind of reserve or any kind of provision is not an expenditure and hence it is allowed. Provision for income tax disallowed. Provision for contingencies, so provision हो जाता है मतलब वो disallowed होएगा। इमोशनल हो जाने का प्रोविजन और रिजर्व हो रहा है तो इमोशनल हो जाने का और उसको क्या करने का अलाउ करना है। इज दैट क्लियर? कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, कंट्रीब्यूशन वैसे कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड आई एम स्पेंडिंग द मनी आउट ऑफ माय पॉकेट एज द ओनर एज द एम्प्लॉयर आई एम पुटिंग सम मनी इन स्टाफ वेलफेयर फंड वेलफेयर ऑफ द स्टाफ। व्हेन आई से प्रोविजन फॉर स्टाफ वेलफेयर फंड disallowed, allowed नहीं है। When I say transfer to general reserve, reserve आ गया disallowed। ओके क्लियर है? तो हम लोग क्या क्या ऐड बैक करेंगे बताओ? तो हम लोग ऐड बैक करेंगे 82,000, हम लोग ऐड बैक करेंगे इनकम टैक्स का 900, गिफ्ट टू रिलेटिव्स का 900, हम लोग ऐड बैक करेंगे सर लाइफ इंश्योरेंस का 2100, फिर ऐड बैक 800 ऑफ द बैड डेट रिजर्व। हम सबसे पहले क्या लेंगे बच्चा लोग? नेट प्रॉफिट लेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। विल टेक नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट? 2,11,500 एंड विल ऐड बैक, हेडिंग देंगे ऐड बैक एक्सपेंसेस डिसअलाउड, एक्सपेंसेस, और जो येलो में दिख रहा है वो सब आइटम्स आपके क्या हो जाएंगे? ऐड बैक हो जाएंगे। और हम लोग कुछ आइटम्स लेस भी करेंगे, हम कुछ आइटम्स लेस भी करेंगे। इनकम कंसीडर सेपरेटली, क्योंकि वो बिजनेस इनकम नहीं है तो उसमें क्या लेस करेंगे? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स 274 रुपीज लेस करेंगे। एंड आफ्टर एडिंग ऑल दिस प्लस माइनस करके जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज माय प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस। ऑल क्लियर? Any questions? Any doubts? More than the solution, add less क्यों किया, क्या किया, क्या किया, उससे ज्यादा क्यों किया, that is more important. All clear? All bench? All? आगे बढ़े। इसका आंसर में डिस्कस नहीं करूंगा, दिस वाज अ कच्चा नींबू सम, बेसिक सम, just to understand the whole concept, nothing else. Sum number 2, Raj Oil Mills वाला sum. Following is the profit and loss account of Raj Oil Mills for the financial year 2021-22. Compute its business income on the basis of additional information, मतलब कुछ ना कुछ adjustments दिया है। Let us see what are the adjustments. ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरा P&L अकाउंट, बिना एडजस्टमेंट देखे, बिना एडजस्टमेंट को देखते हुए what can I observe? If I look at the credit side, if I look on the credit side, we have something called as interest and dividend. भाई और बहनों, interest and dividend are always considered as income from other source. वो आपका बिजनेस इनकम, ये दोनों आइटम्स क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। We have something called as gift on the occasion of Graha Pravesham. Graha Pravesham is that housewarming ceremony. भैया गिफ्ट मिला है, मेरे घर के पूजे में मुझे गिफ्ट मिला, उसका बिजनेस से क्या कंसर्न है? इज इट माय बिजनेस इनकम? वो भी हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे।
और 3 आइटम्स है सर। ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का इनकम है, उसका कुछ नहीं करेंगे एटलीस्ट। और 2 आइटम्स बाकी है सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार एंड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। भैया रिकवरी ऑफ बैड डेट्स हमने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स हमने आज तक कभी डिस्कस अभी करेंगे। और दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, ये भी पॉइंट हमने कभी पहले डिस्कस नहीं किया है। दिस इज अंडर सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हमने अब तक डिस्कस नहीं किया। आई हैव केप्ट इट पर्पसली फॉर द सम्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो सम्स के थ्रू क्लैरिफाई होंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेट अस सी और क्या पॉइंट है। कम टू द डेबिट साइड। सर डेबिट साइड में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रिजर्व फॉर बैड डेट्स। आपने बोला है सर रिजर्व रहेगा तो इमोशनल हो जाने का और क्या करने का, डिसअलाउ करना है। क्या करना है, डिसअलाउ करना है। तो हम लोग सर ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स डिसअलाउ कर देंगे। सर डोनेशन टू ए स्कूल, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली, any kind of donations to anyone are completely disallowed. उसका ATG में अलग डिडक्शन मिलता है, मैंने बताया था मॉर्निंग में आज। You get a separate deduction under section ATG for the same. Right now, any kind of donations in cash, in kind, on whatever grounds is completely not allowed. Logic क्या है सर, बिजनेस का खर्चा नहीं है। ऐसा है कि डोनेशन नहीं देगा तो बिजनेस नहीं होएगा, इसलिए वो खर्चा अलाउड नहीं है। एड बैक करेंगे, एड बैक करेंगे। जहां तक किसी कुछ डाउट है, ऑल क्लियर टिल हियर। तो अभी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या किया वो पढ़ते हैं। बिना इंफॉर्मेशन पढ़े हमने इतना तो जज कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हाउस वार्मिंग सेरेमनी इज नॉट ए बिजनेस इनकम। And on the debit side, we have something called as reserves, and we have something called as donations, जो तुम्हारा बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है। क्लियर यहाँ तक? चलो आ जाते हैं हम लोग सर एडजस्टमेंट्स पे। हाँ जी, लाउड। बिजनेस का सरप्लस फंड्स अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया तो उस पे इंटरेस्ट मिलता है। Even though the funds might be business funds, but still that interest will be considered as income from other sources. We have a separate heading for that part here. हाँ, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, मैंने एक लोन लिया फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, आई एम सेटिंग अप ए न्यू फैक्ट्री, फॉर दैट आई टुक ए लोन। जब तक लोन का अमाउंट भी, लोन मिला तो पूरा एक दिन में खत्म होगा क्या पैसा? वी आर गोइंग टू यूज दैट मनी स्लोली एंड ग्रेजुअली टू एक्सपांड द बिजनेस और टू construct the factory premises. In that case, whatever interest I earn on that loan amount, till the time it is kept in the bank account, will be subtracted from the cost of that plant and machinery or the factory which is being constructed. Otherwise, surplus funds, when they are deposited in the fixed deposits or maybe in the debentures or the shares, whatever interest or dividend we receive will be taxable as income from other source only. Anything else? तो आ जाते हैं एडिशनल पॉइंट्स पे। क्यों आवाज आ रहा है? तो दिख रहा कौन बात कर रहा है? आई एम इग्नोरिंग। फर्स्ट पॉइंट, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹2,000 paid as compensation to an accountant who had been removed from service in the interest of the business. एक अकाउंटेंट था जो गड़बड़ घोटाला करता था, हमने उसको बिजनेस से निकाला, हमारे जो ऑफिस से निकाल दिया, उसको काम से निकाल दिया, एंड वी कंपनसेटेड हिम बाय मेकिंग ए पेमेंट ऑफ 2,500। टेल मी, इज इट ए बिजनेस एक्सपेंडिचर? यस। अरे भैया, बिजनेस को इंटरेस्ट में, बिजनेस के फायदे के लिए हमने किसी को निकाला है और उसके लिए उसको कंपनसेशन पे किया है, इट्स ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। इज इट अलाउड और डिसअलाउड? अलाउड। बिजनेस का एक्सपेंसेस मतलब अलाउड है।
अलाउड है मतलब ना तो ऐड करने का ना ही लेस करना है, नो एडजस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट, ₹3,300 paid as contribution to the government for laying electric cable for the company's plant. क्या करें इसका बोलो? अलाउड डिसअलाउड? अलाउड है, आप बोलते हो अलाउड है, अलाउड है, और से अलाउड, इसे डिसअलाउड, अलाउड बोल सकते हैं। Even though it is a business expenditure, why? First of all, have you learned somewhere in your childhood something called as revenue expenditure and capital expenditure? Money spent on erection or laying down the, क्या बोला उसने इसको, इलेक्ट्रिक केबल फॉर कंपनीज प्लांट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई और बहनों, amount is spent for laying down the new electric line, electric cables. What is the purpose? It is for the purpose of plant and machinery for the factory. It is a capital expenditure. आप capital expenditure पे क्या claim कर सकते हो? Depreciation. You can claim depreciation on capital expenditure. I will say ₹3,300 paid to the government for laying electric cable for the company's plant is a capital expenditure. Is a capital expenditure. Done. It's a capital expenditure and hence हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या क्लेम करेंगे? इसके लिए वो डिसअलाउड है. No doubt it is a business expense, but I can't claim it completely. I can claim only depreciation on that portion. फिलहाल हम उसको डिसअलाउ कर देंगे. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Depreciation as regards, ध्यान दो, नया पॉइंट है, पहले कभी किया नहीं है. Depreciation as regard to the relevant block of assets under the Income Tax Act. Point to be noted, under the Income Tax Act was ₹3,500. थोड़ा सा ऊपर आते सर. सर यहां पर भी एक डेप्रिसिएशन है. सर एक डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, एक डेप्रिसिएशन और एक डेप्रिसिएशन नीचे भी दिया है. जब कभी इस तरीके से दो डेप्रिसिएशन दिए जाएंगे तो मोस्ट लाइकली जो एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन दिया होगा ना, एडजस्टमेंट का जो डेप्रिसिएशन होगा ना, दैट विल बी डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32. यहां पर भी आप सेंटेंस पढ़ो ना ध्यान से, यहां पर हम सेंटेंस पढ़ेंगे ना ध्यान से. डेप्रिसिएशन एज रिगार्ड टू द relevant block of assets under the Income Tax Act. Under the Income Tax Act बोला है, मतलब मुझे ये वाला डेप्रिसिएशन लेना चाहिए इनकम टैक्स पर्पस के लिए, क्या वो जो पीएनएल में दिया वाला लेना चाहिए? What obvious है, we have to consider which depreciation, this one 3,500. क्या करने का बताऊं, क्या करने का बताऊं? वो जो पीएनएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन दिया है ना, वो डिसअलाउ करने का. डिसअलाउ मतलब क्या करने का? एड बैक डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई थिंक अमाउंट वाज 5,000. वो 5,000 क्या करेंगे, क्यों एड बैक किया? बिकॉज़ वो डिसअलाउड है. दैट हैज बीन कैलकुलेटेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटेंट.
इनकम टैक्स में कितना अलाउड है सर? वो एड बैक किया तो इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये एक्सपेंसेस हमने कंसीडर किया ही नहीं है। डाउट है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर मेरे क्वेश्चन में दो डेप्रिसिएशन दिया है, अगर मेरे क्वेश्चन में दो डेप्रिसिएशन दिया है, तो पीएनएल वाला क्या करने का? डिसअलाउड मतलब एड बैक, और जो एडजस्टमेंट में दिया है वो क्या करना है आपको? लेस करना। जो एडजस्टमेंट में दिया है वो क्या करना है आपको? क्लियर है? ओके, डाउट है? आ जाओ सबसे बढ़िया पॉइंट पे। नहीं, पहला डी वाला पॉइंट कर लेते हैं, बाद में सी वाले पॉइंट पे आते हैं। पहला डी वाला पॉइंट करते हैं, बाद में सी वाला पॉइंट पे आते हैं। डी वाला पॉइंट काफी इजी है सर। कार एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹500 attributable to use of car for personal work। सिंपल वर्ड्स में कार एक्सपेंस में 500 रुपए क्या है? पर्सनल है। पर्सनल है तो क्या करेंगे? डिसअलाउड मतलब क्या करेंगे? एड बैक। आउट है सर। 3,300 वो जो गवर्नमेंट को पे किया फॉर इलेक्ट्रिक केबल लेइंग डाउन, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एड बैक कर देंगे। सर कार एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट पर्सनल इन नेचर में 500 एड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एज पर पीएनएल अकाउंट 5,000 एड बैक करेंगे। एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 3,500 लेस करेंगे। एनी डाउट्स? आ जाओ सबसे बढ़िया पॉइंट पे जो आज तक हमने कभी डिस्कस किया ही नहीं है। वो पॉइंट है, in the assessment year 2015-16, the assessing officer had refused to allow deduction for the bad debts of ₹5,000 now recovered। तो ऊपर आ जाते, अपने पास कुछ तो बैड डेट्स रिकवर्ड नाम का पॉइंट था। ये था सर, recovery of bad debts। How much is the bad debts recovered? How much is the bad debts recovered? सर पहले कभी तो हमारा पैसा डूब गया था, जिसे हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। हमारा बैड डेट्स कब हुआ था पता है क्या? हमारा बैड डेट्स हुआ था सर 15-16 वाले ईयर में। 15-16 में किसी कस्टमर ने 5,000 रुपीज क्या किया था? पे नहीं किया। They couldn't recover 5,000 from one of the customer in 15-16। तो हमने कहा ये क्या है? बैड डेट्स है। 15-16 हमने उसको क्या दिखाया? बैड डेट्स दिखाया। क्या दिखाया? बैड डेट्स इज एक्सपेंस। बैड डेट्स इज कब हुआ था हमारा खर्चा? 15-16 में। उस साल जो असेसिंग ऑफिसर मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर था, जो असेसमेंट करता है, आई डोंट नो डिस्कस व्हाट इज द असेसमेंट राइट नाउ, जो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करता है, उस ऑफिसर ने उस बैड डेट्स को अलाउ नहीं किया था। ऐसा मैं नहीं बोलता, क्वेश्चन बोलता है। असेसिंग ऑफिसर हैड रिफ्यूज्ड टू अलाउ डिडक्शन फॉर द बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड। तो जब बैड डेट्स हुआ था 15-16 में, जब बैड डेट्स हुआ था 15-16 में, तब आपने उस खर्चे को अलाउ, और जब पैसा आज मिला है तो पहला सवाल ये कि इसे टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल। रूल बहुत सिंपल है। रूल बहुत सिंपल है। व्हेनेवर वी आर गिवन बैड डेट्स रिकवर्ड, व्हेनेवर वी आर गिवन बैड डेट्स रिकवर्ड, व्हेनेवर वी आर गिवन बैड डेट्स रिकवर्ड, अपने को क्या सोचने का है? अपन सोचेगा दो ही चीज। अपन सोचेगा दो ही चीज। बैड डेट्स रिकवर्ड, दो पॉसिबिलिटीज है सर। सर दो पॉसिबिलिटीज है। अलाउड एज डिडक्शन इन द पास्ट, allowed as deduction in the past,
And second possibility is not allowed as deduction in the past. ये दो possibilities है sir. These are the two likely possibilities. Allowed as deduction in the past, not allowed as deduction in the past. Sir, अगर past में deduction मिला है तो अभी वो क्या हो जाएगा? Taxable. अभी वो क्या हो जाएगा? Taxable है मतलब no adjustment. ऑलरेडी ले लिया ना हमने, क्रेडिट में ले लिया ना, P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने ले लिया ना, बैड डेट्स रिकवर्ड 5000. So no adjustment. Why? Because it is taxable. अच्छा, not allowed in the past. Now it is not taxable. अभी वो क्या होगा? Taxable नहीं होगा. अभी वो taxable नहीं होगा. और अगर taxable नहीं होगा तो वो मेरे इनकम में भी नहीं आना चाहिए. तो उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस फ्रॉम द नेट प्रॉफिट करेंगे. क्या करेंगे? उसको प्रॉफिट में से क्या करेंगे? क्यों लेस करेंगे? बिकॉज सर टैक्सेबल नहीं है, इसके लिए. तो बैड डेट्स रिकवर में सोचना ऐसा है, पास्ट में डिडक्शन मिला था क्या नहीं मिला था? पास्ट में डिडक्शन नहीं था, नॉट टैक्सेबल मतलब उसको आप इनकम में नहीं लोगे, लेस कर दो. पास्ट में डिडक्शन मिला था तो टैक्सेबल तो नो एडजस्टमेंट. क्लियर? इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, मुझे आपको इसके ऊपर ज्यादा सोचना मत. ये बहुत लिमिटेड पॉइंट है, तो ऊपर ज्यादा सोचेगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा rather than कम होने की जगह. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? प्रोजेक्ट फोटो ले लो इसका, ग्रुप में शेयर कर दो. डन डन. तो मैं लास्ट पार्ट पे आता, सम सॉल्व कैसे होगा? आखिरी 10 मिनट. ये हमारा क्वेश्चन. How much is my net profit as per profit and loss account? 71,300. इसमें कुछ आइटम्स ऐड बैक होंगे. क्या क्या ऐड बैक होगा चेक करूं सर? सर डेबिट साइड में हम लोग का डेप्रिसिएशन ये वाला ऐड बैक हो जाएगा 5000, और हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 3500 if you remember. Okay. Next point, sir, reserve for bad debts is not an expense, disallowed. Donation to school, disallowed. सर कार एक्सपेंसेस में कुछ 500 रुपया था पर्सनल. सर कार एक्सपेंसेस में देयर वाज ए पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 डिसअलाउड. और कुछ है सर? वो गवर्नमेंट को पे किया था, उसका अमाउंट कितना था? गवर्नमेंट को पे किया, उसका अमाउंट कितना है? 3300. वो भी डिसअलाउड. जो जो आइटम डिसअलाउड होते हैं हमने सब कुछ ऐड बैक किया. मैंने इसमें अमाउंट लिखा है. आई हैव नॉट रिटन द डिटेल कंटेंट. सर लेस में क्या क्या आएगा? रिकवरी ऑफ बैड डेट्स नॉट टैक्सेबल, तो लेस हो जाएगा. गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ गृह प्रवेशम
not a business income. Interest and dividend, not a business income. What about profit on sale of car? What about profit on sale of car? इसका तो हमने डिस्कशन ही नहीं किया. Profit on sale of car, any profit or loss is not considered. तो प्रॉफिट होगा तो हम लोग यहां से उसको लेस कर देंगे. This is one point I want to discuss now. Profit or loss on sale of the car is not allowed. That is adjusted against the block of the assets. Asset का जो भी cost होगा उसका अगेंस्ट उसका selling price adjust हो जाता है. We don't consider any loss on sale of asset भी नहीं लेते हम लोग and profit on sale of asset भी नहीं लेते. तो प्रॉफिट होगा तो लेस करना, लॉस होगा तो ऐड बैक करना. ये सब कुछ ऐड बैक करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दैट शैल बी कॉल्ड एज माय प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस. एनी डाउट इन दिस सम? एकदम सिंपल, लॉजिकल और कंपेयर टू सैलरी दिस इज अ मच इजियर टॉपिक. ऑनेस्टली आई फील सो.